वेलकम टू स्टैंडर्ड 11। अभी तक 5 सेशन में हमने पढ़े, उसके बाद में उसके आज हम करने वाले हैं। So, आइए पढ़ते हैं पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन। So in simple words, the bookkeeping means recording of the books of accounts in a systematic. We will record all transactions and we will, as you know, what is monetary. आइए इसके बाद देखते हैं डेफिनेशन। See, as per Richard A. Stram, the art of analyzing and recording business transaction through periodic statement. Periodic statement means statement and interpreting such result, और फिर हम इस रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं कितना प्रॉफिट हुआ फॉर द पर्पज ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ फ्यूचर ऑफ. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस जो मैनेजर्स है ऑफ द बिजनेस, दे विल बी एबल टू टेक. और एक डेफिनेशन लेते हैं बाय जे आर बाटली बॉय. बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन सेट्स ऑफ बुक. अब हमने बहुत ही पहले लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ा था सेट ऑफ बुक्स मीन्स टाइप्स ऑफ बुक. कितने टाइप के बुक्स है? सेकेंडरी कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स. उसके बाद में नॉट कोट, bookkeeping is an art of recording in the books of accounts the monetary aspect of commercial or financial transaction. कौन से होना चाहिए? Another definition by R.N. Carter, bookkeeping is the science and art of correctly recording in the books of accounts all those business transactions that result in transfer of money or money's, जहाँ पे पैसे का लेन देन, money and money's both. मतलब we will record only monetary transactions, non monetary will not be recording. आइए इसके बाद हम देखते हैं features of accounting. Now see, what are features of accounting? Now this question may be asked in examination for 1 mark. Write the features of account. और आपका पेपर सेटर बहुत ही लिबरल. Now what are the features of? First point क्या है? It is a method of recording day-to-day business transaction. Day-to-day business transaction हम record करेंगे. Second, only financial transactions are recorded. Means only monetary transactions are recorded. जहाँ पैसे का लेन देन हुआ है वही ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे. बार्टर ट्रांजेक्शन और नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, तो ये हुआ उसका सेकंड फीचर. फर्स्ट फीचर क्या है? इट इज अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे ट्रांजेक्शन, जो डे टू डे हमारे ट्रांजेक्शन हो. सेकंड, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे. थर्ड है, ऑल रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर्ड फॉर स्पेसिफिक पीरियड. स्पेसिफिक पीरियड दैट इज 1 अकाउंटिंग ईयर. हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है ऑन द 1st of April and ends on. Records of transactions are based on some rules and regulations, golden rules, real, personal, nominal. So while recording transaction, next is it is an art of recording business transactions. ये क्या है? Art of record. Clear? I hope features समझ में आ गए होंगे. Features क्या है? पहला, it is method of recording day to day transaction. Second क्या है? Only financial transactions are recorded. Third क्या है? All records are prepared for a specific period which are useful for future reference. मतलब हम जो भी रिकॉर्ड है वो स्पेसिफिक पीरियड के लिए अकाउंटिंग ईयर, एंड दैट कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर ऑल्सो. उसके बाद में record of transaction are based on some rules and regulations. जब हम रिकॉर्ड करते हैं we follow certain rules and it is an art of record this transaction scientifically. हम scientifically. Clear? आइए अभी नेक्स्ट देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक. नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? व्हाई वी रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इन द बुक्स. सो हमारा जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है, see the main objective of bookkeeping is to keep a complete and accurate record of all the financial transaction in a systematic, orderly and logical manner. कैसे हम रिकॉर्ड करते हैं? Orderly manner means we will record all transaction, सारे ट्रांजेक्शन. So it is complete and accurate. Anytime if anybody wants to refer this transaction, you can refer it, because transactions which are recorded in books of accounts are. Second, all the transactions to be recorded date wise and account wise. Date wise और account wise summary बनाते हैं. Account wise like separate account, like asset account, machinery account, land account, building account और expense account like conveyance account. So सारा transaction हम record करेंगे date wise and account. Third है, bookkeeping serves as a permanent record. ये हमारा permanent record है of all monetary transactions conducted by an enterprise. जो भी business enterprise है उसने जो भी transactions किए होंगे, ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स ये हमारे लिए परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस. सिंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स वी विल रिकॉर्ड ओनली, एंड इट कैन बी प्रोड्यूस एज एविडेंस. इसको हम एज एविडेंस इस्तेमाल कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, हमारा कोई कस्टमर के साथ डिस्प्यूट चल रहा है रिगार्डिंग पेमेंट, या कोर्ट में कोई केसेस चल रहे हैं. सो यहाँ पर भी जो हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है जो हमने, इट इज एक्सेप्टेड एज ए एविडेंस. इसको हम एज ए एविडेंस कोर्ट में. फोर्थ पॉइंट है टू नो द प्रॉफिट और लॉस. एट द एंड ऑफ द ईयर
कोई भी बिजनेस जानना चाहता है कि कितना प्रॉफिट हुआ, सो ये किसकी वजह से पॉसिबल। सेम वे, इफ अ बिजनेस वांट्स टू नो व्हाट आर माय एसेट्स, मेरे एसेट्स कितने हैं, किसको कितना पेमेंट करना, मेरा कितना कर्जा है, बैंक को कितना लोन पे करना बाकी, क्रेडिटर्स को कितना बाकी, बिल्स पेएबल कितना कर, दूसरे जो एक्सपेंसेस है वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, तो ये हमें कहाँ से पता चलेगा, व्हाट इज द प्रॉफिट, व्हाट इज। इट ऑल्सो हेल्प्स बिजनेसमैन टू नो व्हाट ही ओज टू अदर्स, मींस व्हाट ही हैज टू पे, उसे किसी किसको कितना पे करना है, कौन से पार्टी को या कौन से सप्लायर को कितना अमाउंट पे, एट द सेम टाइम मुझे कौन से कस्टमर से कितने पैसे आने हैं, ये सारी जानकारी आपको कौन दे। एंड बिजनेसमैन कम्स टू नो द करंट ईयर्स प्रोग्रेस ओवर प्रीवियस ईयर एंड कंपेयर्स इट्स फाइनेंशियल रिजल्ट विद अदर बिजनेस। एंड बुक कीपिंग हमें हेल्प करता है इन फाइंडिंग आउट हमारा प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में ये साल में हमारा हमारा सेल कितना बढ़ा है, हमारी प्रॉफिट कितनी बढ़ी, हमारे एसेट और लायबिलिटी में क्या चेंजेस, तो ये सब हमें कहाँ से। एट द सेम टाइम हम हमारा परफॉर्मेंस है वो सिमिलर इंडस्ट्री में जो हमारे कॉम्पिटिटर होंगे उनके साथ भी हम कम, यू कैन सी एयरटेल एंड जियो। एयरटेल का लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना, लास्ट 3 महीने में प्रॉफिट कितना था, लास्ट 6 महीने में प्रॉफिट जियो का कितना है, लास्ट ईयर एयरटेल ने कितना डिविडेंड दिया, जियो ने कितना डिविडेंड, तो ये सारी जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी, ओनली फ्रॉम द बुक। सो बुक कीपिंग ऑल्सो हेल्प्स इन कंपेयरिंग अवर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, कंपेयरिंग लास्ट ईयर्स परफॉर्मेंस विद करंट ईयर्स परफॉर्मेंस। एट द सेम टाइम हमें हेल्प करता है टू फाइंड आउट कि व्हाट आवर कॉम्पिटिटर्स आर, हमारे कॉम्पिटिटर के प्लस पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स, हमारे प्लस पॉइंट। आगे देखते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग, व्हाई बुक कीपिंग इज सो इंपॉर्टेंट। सी इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग, फर्स्ट पॉइंट हमारा है रिकॉर्ड। नाउ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन टू रिमेंबर ऑल ट्रांजैक्शन, हम लोग इतने जीनियस नहीं कि हम एक एक दो दो साल 5 5 साल याद रख सके, बट बुक कीपिंग मेंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन परमानेंटली। जो भी हमने ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किए, दीज आर परमानेंट रिकॉर्ड, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द रिकॉर्ड। सो बुक कीपिंग हेल्प्स इन मेंटेनिंग द रिकॉर्ड, बुक कीपिंग हमें हेल्प करता है हमारे सारे रिकॉर्ड। सेकेंड पॉइंट है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, विद द हेल्प ऑफ बुक कीपिंग हमें ये पता चलता है कि व्हाट इज द प्रॉफिट, व्हाट इज लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था, लास्ट ईयर का लॉस, कितने एसेट्स थे, हमारा कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है और हमारे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है। इट ऑल्सो हेल्प्स फॉर डिसीजन मेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमने एंट्रीज रखी है, सो ऑन दैट बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ द बिजनेस विल कम टू नो उसे क्या डिसीजन लेने। एट द सेम टाइम जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो हमने रिकॉर्ड मेंटेन किया है, सो बुक कीपिंग ऑल्सो हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द, जो मैनेजर्स है बिजनेस के उनको हेल्प करता है इन कंट्रोलिंग। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर लास्ट ईयर में ज़्यादा सैलरीज पे की या हमारा परचेजेस इंक्रीज हुआ है, सो हम इमीडिएटली देखेंगे अगर परचेजेस इंक्रीज हुआ है तो सामने सेल्स इंक्रीज हुआ है कि प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, तो इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द बिजनेस। अगर परचेज इंक्रीज हुआ है, प्रोडक्शन इंक्रीज है, बट सेल्स इंक्रीज नहीं हुआ है, सेल्स सेम लेवल पे है, तो मैनेजर्स को पता चलता है कि वेयर वी आर लेकिंग, हमारी कहाँ गलती। अनदर पॉइंट एविडेंस, जो हमने आगे भी देखा ऑब्जेक्टिव्स में, इट एक्ट्स एज एविडेंस। जब भी हमारे कोई डिस्प्यूट चल रहा है विद द थर्ड पार्टीज, आउटसाइड पार्टीज का डिस्प्यूट चल रहा है या तो कोर्ट में केसेस, हियर योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज एक्ट्स एज अ एविडेंस, एज अ एविडेंस के तौर पे हम इसको। एंड लास्ट पॉइंट है टैक्स लायबिलिटी, विद द हेल्प ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमें पता चलता है कि हमारा टैक्स लायबिलिटी क्या है, हमें कितना इनकम टैक्स पे, हमें कितना जीएसटी पे कर, हमने जो भी गुड्स परचेज किया होगा उसके ऊपर हमने, एट द सेम टाइम हमने जो गुड्स सेल किया होगा वहां पे हमने जीएसटी, हमें कितना इनकम टैक्स पे कर, टैक्स इज पेड आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द डिडक्शंस लाइक डेप्रिसिएशन वगैरह, जो भी हमारी प्रॉफिट, out of that profit we keep aside some amount for declaring dividend declare net income with the help of, जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए पहले, मीन फीचर्स पढ़े बुक कीपिंग के, उसके बाद में अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज यूटिलिटी ऑफ का, यूजफुलनेस क्या है, यूटिलिटी मींस यूजफुलनेस, तो इसी प्रकार से बुक कीपिंग की यूजफुलनेस क्या है फॉर द for the different stakeholders. See, there are so many parties जिसे हमारे बिजनेस में, जिससे हमारे बिजनेस से, फॉर एग्जांपल कस्टमर्स, गवर्नमेंट, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हमें लोन प्रोवाइड कर, तो ये सारी चीज़ों की बुक कीपिंग की क्या यूटिलिटी है, ये हर एक लोगों के लिए बुक कीपिंग की क्या यूटिलिटी है। सो पहले देखते हैं ओनर इज इंटरेस्टेड इन प्रॉफिट, सो ओनर कैन फाइंड आउट फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड विद द हेल्प ऑफ बुक दैट मेरे प्रॉफिट कितने हैं, मेरे लॉसेस कितने हैं, मेरे एसेट्स कितने हैं, और राइट। देन नेक्स्ट विल बी
Management. Management wants to take. Management wants to plan. Management will have to plan. नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ प्लानिंग करना है. सो मैनेजमेंट को जो डेटा कौन प्रोवाइड कर, मैनेजमेंट को जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, बुक कीपिंग हेल्प्स मैनेजमेंट इन मेकिंग अ प्लान एंड टेकिंग डिसीजन एंड कंट्रोल द. उसके बाद में इन्वेस्टर वांट्स टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ आई वांट टू इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ लार्सन एंड टू, तो मैं क्या ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट करूंगा शेयर्स में? पहले मैं क्या देखूंगा कि शेयर्स की मार्केट प्राइस, शेयर्स की फेस वैल्यू क्या, इतने सालों में कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या, कंपनी ने कितना डिविडेंड पे किया, कंपनी ने कितने बोनस. तो ये सारी जानकारी हमें कहाँ. उसके बाद में कस्टमर जिसको हम हमारे गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर. सपोज कस्टमर ने एक बड़ा ऑर्डर प्लेस किया. कस्टमर वांट्स टू फाइंड आउट, अगर मैं इतना बड़ा ऑर्डर प्लेस करूँ तो जो सप्लायर है वेदर ही विल बी एबल टू सप्लाई मी, क्या वो उसके लिए फाइनेंशियली साउंड है या नहीं. फाइनेंशियली स्ट्रांग होना जरूरी है. बड़ा ऑर्डर है, हमें ज़्यादा रॉ मटेरियल लेना पड़ता, वी विल हैव टू एम्प्लॉय मोर मशीनरी, एम्प्लॉय मोर लेबर्स. तो ये सारी चीज़ों के लिए पैसा लगता है. तो कस्टमर को पता चलता है कि जिससे हम गुड्स ले रहे हैं वेदर ही इज फाइनेंशियली साउंड और नॉट, फाइनेंशियली वेदर ही विल बी एबल टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज इन. तो ये सारी चीज़ों की बुक कीपिंग सर्व्स दिस पर. उसके बाद में गवर्नमेंट वांट्स टू फाइंड आउट कि गवर्नमेंट को कितना टैक्स वसूल, पर्टिकुलर बिजनेस से गवर्नमेंट को कितना जीएसटी लेना है, गवर्नमेंट को कितना यू कैन से इनकम टैक्स कलेक्ट को कितनी एक्साइज ड्यूटी है. तो ये जो सारी जो टैक्स कलेक्शन है, रेवेन्यू है, वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है. टैक्स कलेक्शन इज गवर्नमेंट इनकम. तो गवर्नमेंट को पता चलता है. उसके बाद में लेंडर्स मीन्स दोज हु आर प्रोवाइडिंग लोन, जो हमें लोन प्रोवाइड करते हो, लाइक बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट. फॉर एग्जाम्पल, मुझे लोन लेना है, मैं गया ICICI, 20 लाख रुपया. तो बोलेंगे ठीक है सर, आप आपका लास्ट ईयर का आप इनकम टैक्स रिटर्न तो भरते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो लेंडर को भी कहाँ से पता चले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, इसका बेस क्या है? बुक कीपिंग ना. ये सारे रिकॉर्ड कहाँ से आते हैं? सो बुक कीपिंग हेल्प्स लेंडर्स टू फाइंड आउट कि हमें पर्टिकुलर कस्टमर को लोन देना है. एंड देन डेवलपमेंट, हम बिजनेस ग्रोथ कैसे करेंगे, बिजनेस में ग्रो कैसे होंगे जब हमारे पास सारे रिकॉर्ड होंगे, हमारे कितने रिजर्व्स है, ये रिजर्व्स को हम बिजनेस को ग्रो करने के लिए. तो ये सारी जानकारी क्लियर. सो आज के सेशन में हमने कुछ इंपॉर्टेंट थियरी कवर की, क्योंकि ये थियरी बहुत इंपॉर्टेंट इसके लिए है कि जो आपकी फर्स्ट यूनिट टेस्ट होगी कॉलेज, उसमें आपको कोई सम्स नहीं पूछे, तो उसके लिए मैंने ये थियरी भी सभी को समझ में भी आया होगा. अगर कुछ डाउट्स है आप इसको दोबारा से वीडियो, और इफ समबडी वांट्स टू गिव कमेंट्स, आपको हमारा वीडियो कैसा डिस्क्राइब